दोस्तों, जब सरकार सही वक्त पर स्टैंड नहीं लेती, सब कुछ भुलाकर गले मिलने में व्यस्त होती है, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही भारतीय मूल की एक महिला को भुगतना पड़ा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व बिरादरी के सामने विश्व नीति के मामले में जिस तरह से आत्मसमर्पण किया, उसका खामियाजा अब देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के लोगों को अपमान का घूंट पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका ने जब जंजीरों में भारतीयों को जकड़ जब भारत भेजा, तो पीएम मोदी खामोश रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से खुलेआम चीन ने पाकिस्तान की मदद की, उस पर मोदी खामोश रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से 40 से ज़्यादा बार ये कहा, उनके दबाव में मोदी ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम किया, उस पर मोदी खामोश रहे। टैरिफ लगाया, कमजोर डरपोक प्रधानमंत्री था, उस पर मोदी खामोश रहे। अब मोदी की ओर से इस रूप को अपनाने का खामियाजा भारत के लोग भुगत रहे हैं। जिल्लत को मजबूरी से सहना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, लंदन में रहने वाली भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजॉम थोंगडोक ने एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया। जो खुलासा किया उस पर पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत बीजेपी को एक बार अपनी गिराबा में झांक कर देखना चाहिए। प्रेमा का कहना है कि चीन के शंघाई पोंडोंग एयरपोर्ट पर उन्हें 18 घंटे तक रोक के रखा गया, परेशान किया गया और उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया गया। प्रेमा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और इसी बात को लेकर चीन के अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट अमान्य बता दिया। सोचिए, भारत की अस्मिता पर चीन चोट कर रहा है, लगातार एक के बाद एक चोट कर रहा है और मोदी जी खामोश हैं, बोलते ही नहीं। इसका परिणाम ये अपमान है। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically I went past the E-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the E-gates where there is the immigration the manual counters for the immigration, and then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport, you're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk, and they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them, and they basically didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? So ultimately it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. What is shocking to me is I have in fact transited through Shanghai in the past, a year ago, with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa. प्रेमा 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई में केवल 3 घंटे का ट्रांजिट था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन अचानक एक अधिकारी ने उनका नाम पुकारते हुए फिर से बुलाया और कहा कि उनका पासपोर्ट मान्य नहीं है, क्योंकि उस पर
जन्म स्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश लिखा है। प्रेमा के अनुसार अधिकारी ने साफ साफ कहा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए आपका पासपोर्ट सही नहीं है। प्रेमा को ये सुनकर झटका लगा, क्योंकि इससे पहले वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर चुकी थी। यहाँ तक कि 1 साल पहले संगई से होकर भी निकली थी और उन्हें कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा से पहले उन्होंने लंदन में चीनी दूतावास से पूछताछ की थी, जहां कहा गया था कि ट्रांजिट में कोई समस्या नहीं होगी। प्रेमा एक भारतीय मूल की महिला है जो वर्तमान में यूके में रह रही हैं। उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इसके बाद एयरपोर्ट पर स्थिति और बिगड़ती चली गई। प्रेमा का कहना है कि कई चीनी कर्मचारी और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के स्टाफ ने उनका मजाक उड़ाया। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था और कुछ लोगों ने उन्हें ये तक कह दिया कि वो चीनी पासपोर्ट बनवा लें। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें जापान जाने वाली उनकी अगली फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया, जबकि उनके पास जापान का वैध वीजा था। वो एयरपोर्ट के ट्रांजिट क्षेत्र में बंद जैसी स्थिति में थी, जहां उन्हें सही जानकारी, खाने और अन्य सुविधाओं से भी दूर रखा गया था। प्रेमा ने बताया कि उन पर दबाव डाला गया, वो नया टिकट खरीदें और वो टिकट भी सिर्फ चाइना ईस्टर्न एयरलाइन से ही खरीदना होगा, जब जाकर उनका पासपोर्ट लौटाया जाएगा। इस कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। नई टिकट, होटल बुकिंग और जापान पहुंचने के कार्यक्रम सब बिगड़ गए। लगभग 18 घंटे तक फंसे रहने के बाद उन्होंने अपने एक परिचित की मदद से भारत के संगई स्थित वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया। तब जाकर भारतीय अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और देर रात उन्हें दूसरी फ्लाइट से वहां से निकलने में मदद की। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, अरुणाचल प्रदेश की एक महिला प्रेमा वांगजोम से संगई एयरपोर्ट पर चीन के अधिकारियों ने कहा अरुणाचल चीन का हिस्सा है। तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट इनवैलिड है और यह दबाव भी बनाया गया चीन के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। प्रेमा का पासपोर्ट जब्त कर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इस तरीके का बर्ताव किसी भी भारतीय के साथ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार को चीन से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। मोदी जी, चीन को लाल आग दिखाकर जवाब देने का यही सही वक्त है। प्रेमा ने इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने इसे भारत की संप्रभुता और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के सम्मान पर सीधा हमला बताया है। प्रेमा ने मांग की है कि भारत सरकार चीन से इस मामले में जवाब मांगे, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो, उन्हें मुआवजा मिले और भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान ऐसी अपमानजनक स्थितियों से सुरक्षित रहें। ये घटना सिर्फ एक महिला की परेशानी नहीं, बल्कि भारत की पहचान और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के विवादित रवैये को भी सामने लाती है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है और क्या चीन इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई जवाब देता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।